This call is now being recorded. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے ہیں مولانا؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں مولانا عمران صاحب؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ. ہو جائیں گے آپ 4 بجے تک فری؟ جی میں تو فری ہو گیا ہوں، 15 منٹ باقی ہے. میں نے آپ کی کال دیکھی تو میں نے لوٹا دی. اچھا یہ نارمل کال کیا آپ نے؟ جی نارمل کال کیا آپ نے؟ نارمل، ہاں میں سمجھا آپ نے واٹس ایپ کال کیا ہے. نہیں نارمل ہو جائیے. ہاں چلیے. جی تو تھوڑا سا اس پر آپ اپنا جی موقع بیان کر دیں اس تعلق سے کہ تہجد تراویح ایک ہے الگ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ جی آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ تراویح اور تہجد یہ دونوں نمازیں ایک ہیں. اچھا آپ کا کوئی دعویٰ نہیں ہے اس پر؟ جی آپ کا بھی تو کوئی دعویٰ ہوگا نا؟ جی ہمارا بھی اس کا جواب موقع کہ دونوں ایک نہیں ہے. ہاں تو یہی تو بول رہا ہوں میں. تو آپ دعویٰ کیجیے اس پر اپنا کہ تہجد تراویح ہاں جو ہے جی دو نمازیں الگ نہیں ہیں. جی بالکل ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں نمازیں ایک نہیں ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہیں. جی. تو اب اس کے لیے جی کیا اصول و تو شرائط طے کیے جائیں ہاں تاکہ یہی سب سے بات؟ پہلے یہی بات طے کر لی جائے کہ دونوں کس قسم کے دلائل دیں گے. ہاں ہمارے یہاں تو بھائی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس جی. استدلال میں یہ پیش کیا جاتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. آپ بتا دیں آپ کن چیزوں سے استدلال کریں گے؟ یہی ہے نا دلہ اربا تو یہی چاروں. جی الحمدللہ. یہ تو ٹھیک ہے، سب سے بہتر ہے. پہلے یہ چاروں مطلب ہر ایک مستقل حجت ہے نا. مستقل حجت سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن ہے، قرآن سے مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے، کوئی بھی آیت ہو اس سے جو مسئلہ سے اس میں موجود ہے وہ ثابت ہو جائے گا. ہاں اسی طرح قرآن میں نہیں ہے تو پھر سنت سے ثابت ہو جائے گا، سنت میں ملے گا. تو جی اگر سنت میں نہیں ہے تو پھر اجماع امت میں تلاش کریں گے، اجماع امت میں ملے گا تو اس میں ثابت ہو جائے گا. اگر اس میں بھی نہیں ملے گا تو پھر اس کے بعد ان سے قیاس کر کے ان تینوں کی روشنی میں ہم مسئلے کو ثابت کریں گے قیاس کے ذریعے. یعنی قیاس شرعی ایسا جی قیاس قیاس نہیں. شرعی. ہاں مطلب ایسا باطل قیاس نہیں چلنے کا، اور جبکہ اس جی کی جی اصل بھی موجود ہو، اور قیاس کی جہاں سے قیاس کیا جا رہا ہے اس کی کوئی اصل نہ ہو. یعنی میں اور آپ خالی جی اپنا دماغ اور فہم لگائیں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. جی جی تو جی بہر بہتر ہے. کیف اب جیسے کہ آپ کا ہی کہنا ہے، دیکھیے ہمارا دعویٰ یہ ہے جی کہ تہجد اور تراویح جو ہے یہ ایک ہی نماز ہے. اچھا جی ایک ہی نماز. جی اس کے دو نام ہیں. ایک نام وہ ہے جو ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے جس کو تہجد کہا جاتا ہے، قیام جی رمضان کہا جاتا ہے، قیام اللیل جی کہا جاتا ہے، فی شہر جی رمضان کہا جاتا ہے. اور جی ایک جو الفاظ ہے اس کو تراویح کہا گیا ہے، جو کہ یہ جی نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا. بعد کے جی علماء جو علماء حق، علماء اہل سنہ والجماعت تھے، انہوں نے ایک اصطلاح بنائی تراویح کی. تو جی وہاں سے یہ لفظ جو ہے استنباط کیا گیا ہے. یعنی کسی کتاب میں، جی کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ تہجد اور تراویح یہ دو نمازیں ہیں. جی ٹھیک ہے. جی تو بہرکیف اب جیسے کہ ہمارا تو کہنا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک رات میں بھی، پھر وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہاں کسی ایک رات میں بھی جس طریقے سے آپ لوگ پڑھتے ہیں 20 رکعت تراویح جی اور 11 رکعت تہجد، جی ایسا کسی ایک صحیح حدیث میں سے بھی ثابت نہیں ہے. اگر جی آپ کہتے ہیں کہ یہ دو نمازیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جی آپ کسی ایک رات سے آپ علیہ السلام کا یہ قول یا فعل دکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی رات میں 20 رکعت تراویح ادا کی ہوں اور 11 رکعت تہجد ادا کی ہوں. تو آپ کی بات جی بالکل حق اور سچ ثابت ہو جائے گی. جی تو اس پر آپ بسم اللہ کر کے کوئی روایت پڑھ دیں مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رات میں تراویح بھی پڑھی اور تہجد بھی ادا کی. اچھا جی ایک بات جی بتائیں فرمائیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر
दोनों नमाजों का मुतय्यन तौर पर अलग अलग पढ़ना साबित नहीं होगा तो इसके अदम सुबूत की दलील बन जाएगी। क्या क्या दलील बनेगी? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रात में दोनों नमाजों का अलग अलग पढ़ना साबित नहीं होगा तो क्या ये इस बात की दलील बन जाएगी कि ये दोनों नमाजें एक हैं? हाँ बिल्कुल दलील बन जाएगी, और वो दलील आप दोगे। मेरा तो दावा ही है कि एक नमाज है। आप इससे इख्तलाफ कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं कि बता रहा, एक मिनट बात को समझे मौलाना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तहज्जुद और तरावी एक नमाज है। आपको इससे इख्तलाफ हुआ, आपने इस पर एतराज किया और आपने कहा कि नहीं ये दो नमाजें हैं। तो दो नमाजों के लिए सबसे पहले हम कुरान की तरफ रुख करेंगे। कुरान में अगर नहीं मिला तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करेंगे। अब क्योंकि ये तरावी और तहज्जुद का मसला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रिलेटेड है, क्योंकि आपका और हमारा हम सबका दावा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनकी सुन्नतों को फॉलो करते हैं, है ना? जी। तो आप मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक सही मरफू हदीस पढ़कर सुना दें इस ताल्लुक से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक रात में 20 रकअत तरावी अदा की, और उसके बाद जब सहर का वक्त आया, यानी 2 या 3 तिहाई रात गुजर गई, तो आपने फिर तहज्जुद अदा की। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं हदीस की रूह से साबित करूंगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकअत से ज्यादा अदा नहीं की। अब आप उसको तहज्जुद भी कह सकते हैं, तरावी भी कह सकते हैं, उससे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। अच्छा, तो आपने इसी दौरान गुफ्तगू एक और दावा कर दिया जी कि आपने कहा कि मैं साबित करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में या गैर रमजान जी 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ी। जी यही है ना? हाँ, यानी कि 11 रकात से ज्यादा आपने कभी पढ़ी ही नहीं। मैं रात की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही रात में, रमजान की रात हो या गैर रमजान की रात हो, आपने 11 रकात से ज्यादा कभी पढ़ी ही नहीं पढ़ी। अच्छा जी, एक ठीक। वो भी इंशाल्लाह बुखारी शरीफ की रिवायत के बारे में क्या कहेंगे? एक सेकंड बोला ना, बात को समझिएगा जी। ये इस टॉपिक पर इंशाल्लाह हम इसके बाद गुफ्तगू कर लेंगे। अभी फिलहाल जो टॉपिक है वो ये, क्योंकि कल से आप भी परेशान है बात करने के लिए जी, वो ये कि तहज्जुद और तरावी ये दो नमाजें, तो आप बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले इसी पर आए और अपनी हदीस पढ़ें जिसमें हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में तरावी भी अदा की और तहज्जुद भी अदा की। आपकी बात हक और सच साबित हो जाएगी इंशाल्लाह। हम अभी के अभी तस्लीम कर लेंगे और हम खुद ऐलानिए कह देंगे कि वाकई ये दो नमाज़ें। लेकिन वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप पहले ये साबित कर दीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक रात में दोनों नहीं करेंगे तो फिर दोनों का एक होना साबित हो जाएगा। हाँ बिल्कुल एक हो, जो बिल्कुल हम तो कह रहे हैं भाई तहज्जुद और तरावी एक नमाज है, हम तो दावा कर रहे हैं। अब आपको इख्तलाफ हो रहा है इससे कि नहीं ये दो नमाजें हैं, तो जो इख्तलाफ करेगा, जो दावा करेगा, दलील उसके जिम्मे होगा ना। हम तो कह रहे हैं कि तहज्जुद कह दो या तरावी कह दो, हमें कोई एतराज नहीं है, नमाज एक है, नाम अलग है। अब आप कहते हैं नहीं नाम भी अलग है और नमाज भी अलग है, तो इसके लिए तो आपको फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या फेल दिखाना होगा ना, क्योंकि नमाज अलग करना है, नाम से तो हमें कोई इख्तलाफ ही नहीं ना। अब नमाज दो नमाज अलग साबित करना है तो जाहिर बात है इसके लिए आपको अलग से हदीस चाहिए। एक सवाल का जवाब नहीं, आपका ये मुतालबा ही गलत है कि हदीस चाहिए। मैं अभी आपके अच्छा, मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि तहज्जुद और तरावी दो नमाजें, मैं एक सेकंड मौलाना, जब आप बोलते हैं मैं खामोश रहता हूँ। आप ये दावा कर रहे हैं कि तहज्जुद और तरावी जो है ये दो नमाज है, और मैं आपसे ये मुतालबा कर रहा हूँ कि भाई हजरत अगर दो नमाज है तो इसके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या फेल तो दिखाएं। फिर आपकी बात क्यों मानी जाएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी ना। तहज्जुद और तरावी इनको दो कहना ही, ये दो है, इनको एक कहना ही गलत है। जब दो नाम है तो दो नमाजें हैं। अब दावा अब तो दो नमाजें, माशाल्लाह, देखिए आपने कह दिया ना दो नमाजें, तो दो नमाजें हुई। जी हाँ,
आपने कहा ना दो दो नमाजें, नाम है तो दो नमाजें। हाँ 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 हाँ। अब आप कह रहे कि ये दोनों एक हैं, तो आप दलील पेश करें कि नहीं ये एक ही नमाज के दो अलग अलग नाम है। आप बताइए, कहीं हदीस में कहा गया है कि इसी का नाम तहज्जुद है, इसी का नाम तरावी है? कोई एक ज़ईफ़ रवायत आप दिखा दीजिए कि इसी का नाम तहज्जुद, उसी का नाम तरावी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुन लीजिए जी, हमने आपसे कहा था कि ये तो बाद के उलमा की इजाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लफ्ज तरावी था ही नहीं। अगर आप दावा करते हैं कि था तो आप मुझे दिखा देना किसी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कि उसमें लफ्ज तरावी आया है। हम तो स्टार्टिंग में ही यही बोल कर चले, तो अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनते रहिए, आप खामोश रहिए। जी बात मुझे लग रहा है पहली मर्तबा किसी से इस तरह की डिबेट कर रहे हैं। आप बात आगे बढ़ाइए। नहीं, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। नहीं, मैं आपकी बात पर मैं ये बोल रहा हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कितनी बार तहज्जुद, ये रमजान का महीना आया, आपको इनमें इस ताल्लुक से कितनी बार आया? जी, जितनी बार भी आया आप बताइए आगे। नहीं, कितनी बार नहीं, 2 हिजरी में जो है रोजा फर्ज हुआ उम्मत के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हाँ, तो गरीबन 9 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में माह रमजान मुबारक का महीना आया। इन 9 सालों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई एक ज़ईफ हदीस भी साबित नहीं है जिसमें हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में 20 रकत तरावी पढ़ी हो और 11 रकत तहज्जुद पढ़ी हो। तो हमारा तो सिंपल मौक़िफ़ यही है कि जो तहज्जुद है, बाद के जो उलमा हैं उन्होंने इसको तरावी का लफ्ज भी दिया, उससे हमें कोई एतराज ही नहीं। एतराज हमें जब होता है जब सामने वाला बंदा इसकी मुखालिफत करते हुए कहता है कि नहीं, नाम तो अलग है ही, नमाज भी अलग है। तो जो बंदा ये दावा करेगा कि 2 नमाजें हैं तो दलील उसी के जिम्मे होगा ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलबय्यिनतु अलल मुद्दई, मुद्दई के जिम्मे दलील है। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला। एक बात बताइए आप कि आप खुद कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तरावी का लफ्ज था ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तरावी का लफ्ज नहीं था, तो तरावी का लफ्ज कब ईजाद हुआ और तहज्जुद के लिए भी ईजाद हुआ? आप इसकी कोई एक रिवायत पेश कर दीजिए कि तहज्जुद पर ही तरावी का इतलाक किया गया है, बात को उलमा ने किया गया। अब ये बता किस आलिम ने, किस सहाबी ने, किस मुहद्दिस फकीह ने तहज्जुद पर ही तरावी का इतलाक किया गया? आप ये बताइए। ठीक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सामईन किराम जरा गौर फरमाइएगा कि मौलाना साहब को एक इख्तिलाफ था इस बात से कि तहज्जुद और तरावी ये 2 नमाजें हैं, एक नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये इख्तिलाफ कर रहे थे तो इनको दलील देना चाहिए था, लेकिन आप सीधे सीधे दलील पेश कीजिए, आप सीधे सीधे दलील पेश कीजिए ना, जवाब पेश कीजिए सीधे सीधे। मेरे टर्म में आप ना बोले बराए मेहरबानी। तो बहरे गैर जिम्मेदारी इनकी ये थी कि जैसे इनका दावा था कि 2 नमाजें हैं, ये इनको 2 नमाजें साबित करते, लेकिन बेचारे लाचार हैं, मजबूर हैं, नहीं कर पाएंगे, कयामत की सुबह तक नहीं कर पाएंगे। तो अरे मौलाना आप सीधे सीधे दलील पेश कीजिए। आप देखिए इधर उधर जाने के बाद सीधे सीधे दलील पेश कीजिए, गुफ्तगू मुझसे हो रही है, इसलिए आप सीधे सीधे। उन्होंने ये बोझ हमारे ऊपर डाल दिया कि हम ही इनको एक नमाज साबित करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इनके घर से इस नमाज को कि ये एक ही नमाज है और इसके 2 नाम है, इनके घर से मौलाना एक मिनट मौलाना, एक मिनट जी। इनके घर से क्या मतलब? आप कौन है? हनफी है ना? ये एक बार बताइए आप। मैं शुरू में तय किया हुआ था कुरान, हदीस, इजमा या क़ियास। अच्छा, ये 5वीं चीज कहाँ से लाए आप? अच्छा, तो आपके जो घर के हैं ये आप 5वीं चीज लाए कहाँ से? मैं आपके घर से मैं भी आप दोनों को अलग अलग साबित कर सकता हूँ। आपके घर से मैं भी साबित कर सकता हूँ और एक नहीं 10 साल से साबित कर सकता हूँ, बल्कि मैं इमाम बुखारी से साबित कर सकता हूँ। आप कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास इन 4 चीजों से बाहर न निकले, जो तय हुआ था उससे बाहर नहीं निकल सकते आप। बोल लीजिए। नहीं, आप इन्हीं 4 में से किसी एक से साबित करें। आप ये किसी की इबारत अगर आप पेश करेंगे तो इबारतें मेरे पास भी बहुत हैं, इसलिए सबसे पहली बात ये पेश नजर रखें, इन 4 से आपको बाहर नहीं निकलना है। चलिए माशाल्लाह जी। देखिए सामईन, हालांकि हम इनके घर से ही साबित कर देते और ये रसूलुल्लाह की सुन्नत भी है कि मुखालिफीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर से ही जो है दलाइल पेश किया करते थे। तो ठीक है, मैं आपको आपके घर से दिखा रहा हूँ, मानेंगे आप अपने घर से? मुझे बोलने क्यों नहीं मानेंगे अपने घर से?
नहीं नहीं, आप मानेंगे या अपने तो घर पे, आप बोल लीजिए या मुझे बोल आप अपने घर पे ऐसे बात नहीं करता मैं जैसा आप बात कर रहे हो। आप जो आप सबर से बात करिए ना, सबर कीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, आप तहम्मुल से बात जो हो कीजिए ना, रही आप है, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तहम्मुल से बात कीजिए, आप बात तहम्मुल भी से करते सुनिए रहिए, मैं और बोलता हूँ, मौजू आप पे बीच में रहिए, बड़बड़ा जिससे के बात शुरू हो कर रही है, देते हैं। जिससे बात हो रही है अरे आप तो उससे अल्लाह के बात बंदे आप कीजिए, आप खामोश इधर रहिए उधर ना, न जाए। बीच में आप बोल लीजिए, अरे मैं आपको मौलाना, टाइम आप दिया। जिससे बात हो रही है आप आप 5 उससे मिनट बात बोलिए, कीजिए, मेरा या तो टाइम आप आपको सामाइन दिया, से चलिए। गुफ्तगू करें, लेकिन या तो घबराए आप ना, सामाइन आराम से से और गुफ्तगू कर पूरी लें बात या मुझसे करें। गुफ्तगू कर लें। नहीं, आप 5 किसी मिनट एक से बोले, गुफ्तगू उसके कर बाद में लीजिए। बोलूंगा ना। बोलते हो ना बोलने देते हो यार, अजीब इंसान हो। आप बोलते नहीं, आप दूसरी तरफ मुतवज्जे हो अरे रहे हो। अल्लाह आप के बंदे, तो आप मेरे सवाल सुनिए का एक जवाब मिनट, दो, एक मिनट मेरे सुनिए। सवाल का जवाब दो। वही दे रहा था, नहीं देने दिया आपने यार, आप हाँ, बीच में बड़बड़ा मेरे रहे सवाल हो। का जवाब दो, नहीं देने दिया क्या? अरे अल्लाह के बंदे, आप खामोश रहेंगे तब ना, बोलने नहीं देते, मैं बोलता हूँ, आप बीच में टपक पड़ते हैं। आप बोल के निपटिए, मैं बाद में बात कर लेता क्या हूँ। बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? तब से तुम इंसान हो यार। अजीब इंसान हो तुम। अरे अरे तुम हम क्यों चार अजीब है? हम तो कह चार रहे हैं, चीजों आप में, बोलिए। एक तो पहले मैंने सीधे सीधे कहा कि आप पेश करें दलील, तो अरे आप अल्लाह के सामने की बंदे तरफ भी मुतवज्जे कहाँ हो गए दलील कि पेश इन्होंने करने ये दे क्या रहे हैं गुनाह आप था। मुझे? आप दलील पेश करो, चलो पेश करो, तो सीधे आप सीधे बीच दलील में पेश करो। नहीं बोलेंगे, वादा हाँ, कीजिए। सीधे सीधे दलील पेश करो। आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप वादा कीजिए, सीधे सीधे दलील पेश करेंगे। आप वादा कीजिए, सीधे सीधे दलील पेश करेंगे। करीम अम्माबाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए सामीन किराम, ये जामे तिरमिजी की रिवायत है, रिवायत नंबर 806। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन बाजमात, जिसको हम तरावी तहज्जुद कहते हैं, उनको 3 दिन बाजमात अदा कराया। और वो 23, 27, 27 इन तीन रातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज रमजान क़याम की जमात के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ाई। तो उसके ताल्लुक से तमाम हनफी उलमा, तमाम देवबंदी, बरेलवी, अहले सुन्ना वल जमात, अहलुल हदीस, तमाम मकातिब फिक्र जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, उन सबका कहना है कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दिन बाजमात जो है वो तरावी या तहज्जुद, ये बाजमात 3 दिन पढ़ना साबित है। इसी हदीस में अगर आप देखेंगे, एक मिनट, ये झूठ है। बोल रहे हैं, एक मिनट, ये आप झूठ है, खामोश हो जाए। ये झूठ है। नहीं, आप खामोश हो जाए बिल्कुल। नहीं, पहले एक मिनट, ये झूठ है। बंदे का नंबर दिया है, एक मिनट, यार ये आपने झूठ ना बोले पहले। भाई। किसी ने भी ये नहीं कहा कि तहज्जुद 3 दिन पढ़ना साबित है। आप वो हदीस बुखारी क्यों पेश करते? माता ने अजीब की रमजान वाला पी गई थी, आप कहते हमेशा इसी पर अमल, तो 3 दिन क्यों कह रहे हैं आप? 3 दिन सिर्फ पढ़ा तहज्जुद और तरावी आपने, ये उसके अलावा कभी तहज्जुद नहीं पढ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये बताइए आप। देखिए आप बताइए कि किसी ने 3 दिन तरावी और तहज्जुद पढ़ा? ये बीच में बड़बड़ा नहीं, आप बताइए कि तरावी। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं? एक मिनट मौलाना, आप कहिए कि क्या तमाम उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन तहज्जुद पढ़ा? आप बताइए। 3 दिन के अलावा आपने तहज्जुद पढ़ा ही नहीं। आप बताएं। हो गई आपकी बात? आप बता, इसका जवाब दे। नहीं हो गई नहीं, आप जवाब दो। बाजमात बोला हूँ, आप कितने दिन मानते हैं रसूलुल्लाह ने जब बाजमात पढ़ी है? आप तो तहज्जुद का लफ्ज़ कहाँ लिखा? किसने लिखा कि आपने 3 दिन तहज्जुद के बाद नमाज पढ़ी? को खास ही नहीं किया। किसने लिखा है? आपने अभी आपने 3 दिन सिर्फ आपके पढ़ा। बस की नहीं है बात करना। फोन नहीं रखो। आप पहले ये बताएं कि 3 दिन के अलावा आपने कहाँ तहज्जुद, किस मुहद्दिस ने लिखा है तहज्जुद 3 दिन के अलावा आपने नहीं पढ़ा? देखिए सामीन, ये झूठ बोल रहे हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन सिर्फ तहज्जुद पढ़ा है और 3 दिन सिर्फ तरावी पढ़ा है, यानी पूरी जिंदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी तहज्जुद पढ़ा ही नहीं है। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के अलावा नमाज तहज्जुद की नमाज पढ़ी ही नहीं है। गैर मुक़द्दस का इल्जाम लगा रहे हैं। अभी आपने कहा ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, इसमें आपने साफ 3 दिन के अलावा आपने पढ़ा ही नहीं है। पहले आप अपने दिमाग की भाग जाओ भाई, बात करना नहीं है। हाँ भाई भाग जाओ। अरे भागना है तो भाग जाओ। जरूरियत में कोई ऐसा पैदा नहीं भागना है तो भाग जाओ भाई। तो सीधे सीधे जवाब तो दे नहीं रहे हो, तुमसे जवाब बन नहीं पा रहा, तुमसे जवाब तो बन नहीं पा रहा। तुमने कहा वो रसूलुल्लाह ने अच्छा, तुमने तहज्जुद नहीं कहा? अच्छा, तुमने तहज्जुद नहीं कहा? अच्छा, तुमने तहज्जुद नहीं कहा? अरे अल्लाह के बंदे, तहज्जुद भी कहा तब भी कोई एतराज की बात नहीं है। अच्छा, यानी सिर्फ तहज्जुद 3 दिन पढ़ी? तुमने कहा 3 दिन सिर्फ पढ़ी है बाजमात? चौथे दिन की दलील है? अच्छा, बाजमात सिर्फ 3 दिन पढ़ी है? बाजमात सिर्फ 3 दिन पढ़ी है आपके पास? अच्छा ठीक है, बाजमात सिर्फ 3 दिन पढ़ी है, मानते हैं आप या आपका नहीं? ये दावा है? आप मानते हैं इसको या नहीं? बाजमात सिर्फ एक मिनट सवाल का जवाब दो पहले। बाजमात सिर्फ 3 दिन पढ़ी है। आप सवालों की दुकान नहीं खोलोगे, हमें भी आके सवाल का। अब आप बताओ, रसूलुल्लाह ने क्या 3 दिन से ज्यादा बाजमात अदा की है? आप बताओ, बाजमात सिर्फ 3 दिन सिर्फ पढ़ी है? 3 दिन पढ़ी है ना? आगे आगे सवाल का जवाब दो। ये 3 दिन जो पढ़ी है तरावी की, उन्होंने मान लिया कि 3 दिन पढ़ी है, लेकिन बोलते
نہیں ابھی تم نے کہا تھا کہ تہجد 3 دن کے علاوہ پڑھی ہی نہیں کروں گا آپ سے. نہیں مولانا صاحب یہ 3 دن کے پڑھے مجھے بولنے دو. مولانا صاحب معاملہ صاف ہو چکا ہے. یہ آپ کا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے.